Good morning, everyone. I am Himanshu Soni, and today we will discuss polynomial. What is polynomial? Poly means many, nomial means terms. Many term. एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन टू टर्म्स हो, वन टर्म्स हो, उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल. What is the general form of polynomial? तो पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होगा इज एन एक्सप्रेशन, algebraic expression of the form a0, a1 x raised to power 1, a2 x raised to power 2, and then so on an x raised to power n. Now this expression is known as the polynomial. If nth term is this, n minus 1th term, इससे previous term क्या होगी हमारे पास an minus 1 x raised to power n minus 1. उससे प्रीवियस टर्म एंड उससे प्रीवियस हम सभी टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ बिफोर स्टार्टिंग दीज पॉलिनोमियल्स बेसिक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो अबाउट व्हाट इज कांस्टेंट, whose value is fixed. Is known as constant. जैसे कोई भी नंबर हम लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 3 minus 5, any value positive, negative, or all are the constant. And another one is variable, whose value is not fixed. It means it can change according to situation. Whose value is not fixed, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, एंड दैट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. इज नॉन एज वेरिएबल. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कांस्टेंट टर्म्स. ये हमेशा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय alphabets. It is represented by alphabets. So alpha, for example, 2x स्क्वायर, हमारे पास कोई टर्म है 2x स्क्वायर. इसमें x क्या है? दिस इज द वेरिएबल. सो x y a b c जो भी हम ये यूज करते हैं, दीज आर वेरिएबल्स. सो इस तरह के जो भी एक्सप्रेशंस होंगे, w m n whatever be the alphabets we are using is known as the variable. Now next one is the term. अभी हमने नाम लिया था term. So what is this term? A term consists of 4 different things. A term consists of 4 things. हम एक एग्जांपल लेते हैं टर्म में, -2x स्क्वायर, -2x क्यूब, कोई भी ले लो. अब इसमें 4 थिंग्स क्या क्या है? फर्स्ट वन इज दिस साइन, सेकेंड वन इज दिस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, थर्ड वन इज दिस वेरिएबल, and the fourth one is this power. Now these 4 things are, the combination of these 4 things are known as terms. So how many terms are there? We can count down in the expression. For example, 2x square plus 3x. How many terms are there? 1, 2. Now each and every term has the 4 parts. First one their sign, second one their coefficient, third one is variable, fourth one is power, then sign, then coefficient, variable, and then power.
So there are two terms. There are two terms, one term and second term. How many terms this expression has? Two terms. So now next one is like unlike terms. Like and unlike terms. So like unlike terms क्या होते हैं? If the expression, if in an expression the two terms has same variable, in an expression two terms has same variable and same power. अगर दो टर्म की वेरिएबल और उनकी पावर सेम है देन दे आर नोन टू बी लाइक टर्म. Then they are known as like term. इन्हें हम क्या बोलेंगे? लाइक टर्म. अदरवाइज दे आर नोन एज अनलाइक टर्म. अब ये लाइक और अनलाइक टर्म का भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. अगर हमें कभी ऐड करना हो किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर तो हमें लाइक टर्म को लाइक टर्म में ऐड करना होता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. इन द नेक्स्ट वन, type of polynomials. Next topic is algebraic expressions. When two or more unlike terms are written together with plus or minus sign. Then these are known as algebraic expressions. For example, 2x square plus 3x plus 4. हमारे यहाँ पर थ्री टर्म्स है हमारे पास और तीनों की तीनों टर्म्स क्या है? आपस में डिफरेंट है, अनलाइक टर्म्स है. सो नाउ दिस इज नोन एज द algebraic expression. So similarly the polynomial is also the algebraic expression in which the general form is a0 a1 x raised to power 1 a2 x raised to power 2 and then so on up to nth terms and an x raised to power n, where n should be a non-negative integer. So this is all about basic of polynomial. Now the next topic is type of polynomials. Now depending upon their number of terms we can say the polynomial is of different types: monomials, binomials, trinomial, multinomial. Monomial means if a polynomial has only one term. If a polynomial has two terms then it is known as binomial. If a polynomial has three terms then it is known as trinomial. And if the polynomial has more than three terms then it is known as multinomial. So इनके एग्जांपल्स लेते हैं. मोनोमियल्स के एग्जांपल होंगे x
2x 3x स्क्वायर रूट 2 y m क्यूब अपॉन 3, तो ऑल आर द मोनोमियल्स. हर एक्सप्रेशन में these are different expressions and they has only one variable, one terms. In the binomial 2x plus 3 3x square plus 5x root 2y plus y square and then so on. अब इनके पास दो दो टर्म हो गई. These are known as the binomial. Similarly 3 टर्म्स हो जाएंगे तो हमारे क्या बनेगा वो ट्राइनोमियल. Now this is the trinomial. इसमें कितने टर्म्स हमारे पास? 3 terms. Next one is the multinomial. If it has more than 3 terms, then it is known as multinomial. Now this is also the multinomial, more than 2 terms. It is known as the polynomial in general form. Now next topic is the standard form. How can we know about their standard form ऑफ ए पॉलिनोमियल? अब इसको स्टैंडर्ड में कैसे बताएं? हमारे पास कोई एक्सप्रेशन गिवन है 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x क्यूब. नाउ क्या ये जनरल फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. टू राइट दिस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे पहले हमें इनकी जो पावर्स है उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म के अंदर लिखना है. तो जिसकी सबसे ज्यादा पावर है, जिस टर्म की, वो टर्म सबसे पहले, या जिस टर्म की सबसे कम पावर है वो सबसे पहले. इनमें से कोई भी एक हमें फॉलो करना होगा. हम फॉलो करते हैं जनरली जिस टर्म की पावर सबसे ज्यादा है उसे सबसे पहले. तो इसको जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3. अब इसकी पावर कितनी है? 3. इसमें नेक्स्ट वेरिएबल में पावर कितनी है? 2. उसके बाद इसकी पावर कितनी है? 1. एंड देन इसकी पावर कितनी है? x की पावर 0. कांस्टेंट है तो उसके पास x है ही नहीं, तो हमारे पास ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है. दिस इज नॉन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ अभी हमने नाम लिया कि इनकी पावर्स, तो इनकी पावर्स के फॉर्म बेस पे हम निकालते हैं डिग्री. अब डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल. हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल. किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री बनेगी. जैसे हमने एक जनरल फॉर्म में लिखा तो इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री n. इधर जितने भी एक्सप्रेशन है इसकी डिग्री कितनी है? 2. इधर ये एक्सप्रेशन हमने लिया, इसकी डिग्री कितनी है? इस एक्सप्रेशन में सबसे ज्यादा डिग्री कितनी? सो नेक्स्ट इज द डिग्री. व्हाट इज डिग्री? द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन. For example, 3x square plus 2x plus 5, इसकी डिग्री कितनी होगी? आप देख सकते हैं यहां पर है हाईएस्ट पावर कितनी है एक्सप्रेशन की. इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है और इधर इसके साथ x की पावर क्या है? 0. तो यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी गई? 2. तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इट्स डिग्री इज 2. So we can identify what is the degree of the expression. अब हम डिग्री के if degree is degree of the expression algebraic expression is 1, then it is known as लीनियर एक्सप्रेशन. ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर एक्सप्रेशन. जिस एक्सप्रेशन में, लीनियर एक्सप्रेशन में डिग्री कितनी है? 1 है. जिस एक्सप्रेशन में डिग्री 1 है वो एक्सप्रेशन कैसा होगा? लीनियर एक्सप्रेशन. सो कभी भी लीनियर एक्सप्रेशन मिल जाए उसकी डिग्री हमेशा क्या मिलेगी? 1. अब वो कैसे दिखते हैं? लीनियर एक्सप्रेशन इज अ फॉर्म ऑफ ax प्लस b. लीनियर एक्सप्रेशन इस फॉर्म में मिलेंगे आपको.
इसके एग्जांपल्स देखिए लीनियर एक्सप्रेशन के 2x plus 3. These are the examples of linear expression. If the degree of an algebraic expression is 2, अगर डिग्री उसकी 2 है तो वो क्या कहलाएगा? Now it is known as, then it is called a quadratic expression. क्लियर? अब हमारे पास डिग्री अगर 2 है तो एक्सप्रेशन कैसा कहलाएगा? वो क्वाड्रेटिक. अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस b प्लस bx प्लस c. इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? 3x² प्लस 5x प्लस 7. नाउ वन मोर थिंग कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की कंडीशन होगी कि a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी ऐसी कंडीशन होगी कि a मस्ट नॉट बी 0. भाई डिग्री जो है वो तो इसकी 2 तभी बनेगी जब ये नॉन जीरो वेरिएबल होगा. इसकी डिग्री 1 कब बनेगी? जब ये नॉन जीरो होगा. बाकी जीरो होने दो, बाकी कोई भी वेरिएबल हमारा जीरो हो सकता है. क्लियर? इन द नेक्स्ट वन, इफ डिग्री हमारे पास कितनी है? 3 है, तो अब एक्सप्रेशन कैसा बनेगा? क्यूबिक एक्सप्रेशन. इफ डिग्रीज हमारे पास कितनी है? 4 है, तो एक्सप्रेशन कैसा बनेगा? बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. ये सब बेसिक आपको पढ़ना है ताकि हम जब जो भी टर्म्स आगे डिस्कस करें उनके बारे में आपको पता लगता रहे. सो सम मोर important terms are here. Now next one is a constant polynomial. What is constant polynomial? Constant polynomial होगा जो एक constant क्या होते हैं? जैसे 2, 6, 5, pi, √3. These are constant. एंड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल मींस इनके साथ अगर हम x की पावर 0 लिख दें तो ये पॉलिनोमियल भी बन गए, तो सारी टर्म्स कंडीशन फॉलो हो गई. तो अब इनकी डिग्री कितनी हो गई? अगर हम इनकी डिग्री देखें कांस्टेंट पॉलिनोमियल में तो इनकी डिग्री कितनी हुई? 0. तो इनकी डिग्री कितनी रहेगी? 0. क्लियर? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री आएगी 0. नेक्स्ट वन इज द जीरो पॉलिनोमियल. व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल? जो जीरो होता है इज नॉन एज द जीरो पॉलिनोमियल. अब इसकी डिग्री कितनी होती है? इसे भी हम लिख सकते हैं 0.x की पावर 0, अभी भी ये 0 रहेगा. 0.x की पावर 2, अभी भी 0 रहेगा. 0.x की पावर 12, अभी भी 0 रहेगा. मतलब इसकी डिग्री क्या है? इज नॉट डिफाइंड. इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड. तो डिग्री कितनी होगी? डिग्री इज not defined. Clear? Next one is value of polynomial. Value of polynomial. So value of polynomial को हम कैसे डिफाइन करेंगे? The value of the polynomial px, कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल है px, हम पॉलिनोमियल को px से रिप्रेजेंट करेंगे. कोई भी पॉलिनोमियल आएगा उसे हम px लिखेंगे. पॉलिनोमियल इन x, py पॉलिनोमियल इन y. एक्सप्रेशन यहाँ x क्या है? वेरिएबल है, हमने लिख दिया py. So polynomial in y. So the value of the polynomial px is, हम कैसे फाइंड करेंगे px की वैल्यू? कि x की जगह हम कोई भी एक वेरिएबल पुट करेंगे और उस वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी? पॉलिनोमियल की वैल्यू.
So the value of the polynomial px at x is equal to a is pa. तो हमने किसी एक वैल्यू, जो वेरिएबल की वैल्यू पुट करी, हमारे पास वेरिएबल क्या है यहाँ पर x, और x की वैल्यू हम जो पुट करेंगे वो क्या बनेगी, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है px 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5. अब हमें फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू 1. हमें x इज इक्वल टू 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताइए. तो हमें कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी हैव टू रिप्लेस all the variable of x, values of x by 1. so जहां जहां हमने x लिखा है वहां वहां हमें क्या लिखना है, उन सभी जगह हमें क्या लिखना है 1. जहां जहां पर x लिखा हुआ है उनकी जगह हमें लिखना है 1. so at 1 x is equal to 1, what is the value? you can calculate easily, आप आराम से सेल्फ सॉल्व कर सकते हैं. so 1 का स्क्वायर 1 into 2 2, 3 1 जा 3 प्लस 5, टोटल वैल्यू बिकम्स 10. तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है एट p1 x is equal to 1 is 10. you can calculate it easily. अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह भी आ सकता है, कोई भी एक्सप्रेशन है इज 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 5 हैज ए वैल्यू p1 is equal to 0. भाई जो इसके p1 की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है. देन फाइंड k, हमें k की वैल्यू फाइंड करके बताइए. तो इस एक्सप्रेशन में हमें क्या पुट करना है, p1 पुट करेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू में 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस 5, और इसकी होल एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है, 0. p1 की वैल्यू कितनी है, 0. सो इन दिस केस so we have to solve this expression. 1 square is equal to 1 into 2 plus k plus 5 equal to 0. तो k plus 7 कितना आया, 0. तो k का वैल्यू हमने फाइंड किया -7. so k must be -7 so that we can get p1 is equal to 0. clear? Next topic is zeros of polynomial. What is the zeros of polynomial? हम कह सकते हैं let a be the zero of polynomial. कोई पॉलिनोमियल px है और उसका a हमने क्या अज्यूम किया है, उसका जीरोस है. ये कब होगा, इफ p a की वैल्यू कितनी हो जाए, 0. अगर हम a वैल्यू पुट करते हैं एक्सप्रेशन में, x इज इक्वल टू a पुट करते हैं और उसकी वैल्यू 0 हो गई, तो जो x इज इक्वल टू a है वो a वैल्यू हमारी क्या होगी, उसका जीरोस. लेट a बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. इट मींस p a इज इक्वल टू 0. अब इस कंडीशन को याद रखना. हम इसका एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल 2x प्लस 5, कोई px हमारे पास एक्सप्रेशन है 2x प्लस 5. इस एक्सप्रेशन की वैल्यू में, इस एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, व्हाट इज इट्स जीरो, इसका जीरोस क्या होंगे. अब इसके जीरोस में इट मींस हमारे पास एक x की एक ऐसी वैल्यू
जिसके लिए पूरा वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम क्या करते हैं, पूरी वैल्यूज को हमने मान लिया 0, हमने पूरी वैल्यू को क्या लिया, 0 एज्यूम कर लिया। तो 2x का वैल्यू कितना आया, -5। सो x की वैल्यू कितनी आई, -5/2। तो x की वैल्यू जो आई ये हमारी क्या होगी, 0। और भी एग्जांपल हम चेक कर सकते हैं, x प्लस x माइनस 3 px कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब ये इसका जीरोस क्या होगा, बड़ा इजी है, सिंपल है। अगर हम इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, लेट इट इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 3, तो इसका जीरोस क्या बन गए, 3। सिमिलरली सम अदर इक्वेशंस, कोई पॉलिनोमियल हमारे पास है x प्लस 1 x प्लस 2, इसके जीरोस क्या होंगे, इसे भी हम 0 के बराबर पुट करेंगे, लेट इट इज इक्वल टू 0। अगर ये एक्सप्रेशन 0 है तो जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इधर वन ऑफ देम इज 0, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, हो सकता है दोनों 0 हो। सो इधर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू कितना आया, -1 और x इज इक्वल टू -2। तो ये दोनों वैल्यूज जो है ये हमारे जीरोस होंगे। यहां पर ये लीनियर वेरिएबल है तो इनका कितना जीरोस आए, 1। यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी कितने डिग्री है, 2 डिग्री है, इसकी डिग्री 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है तो इसके कितने जीरोस आए, 2। तो इनके जीरोस कितने निकलेंगे, डिग्री और जीरोस का कुछ नंबर ऑफ जीरोस का लिंक होता है, क्या होगा कि नंबर ऑफ जीरोस कैन बी मैक्सिमम टू द नंबर ऑफ द डिग्रीज। जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ जीरोस हमारे मैक्सिमम हो सकते हैं। नाउ ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, उन सब के बेसिस पर आप इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखिए और वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व करने हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। हमने पॉलिनोमियल में देखा था इसकी जो पावर होनी चाहिए, जो डिग्री होती है, जो वैल्यू ऑफ n होती है, वो मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। सो नेगेटिव इंटीजर इसमें है, x एक रियल नंबर पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव इंटीजर है। सो ये एक पॉलिनोमियल है, यस। इसमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, ये x रेज टू पावर -1। अगर हम इस x की पावर को ऊपर ले जाते हैं तो x रेज टू पावर -1 हो जाती है। तो अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बनेगा, इट इज नोन एज द, क्या ये पॉलिनोमियल है, आप देखिए इसको, पावर नेगेटिव जा रही है, हमने क्या कहा था, पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। सो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल, क्लियर। इन द नेक्स्ट वन, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ x की क्यूब, ये एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है, इसमें x की क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, क्या इसमें x की क्यूब का कोई कोएफिशिएंट, x की क्यूब की कोई टर्म है, नहीं है। अगर वो टर्म ही नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट क्या अज्यूम किया जाएगा, 0, क्योंकि हम इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, x रेज टू पावर 2x रेज टू पावर 4 0.x रेज टू पावर 3 प्लस 3.x रेज टू पावर 2 प्लस 4x माइनस 5। यहां पर हमने इंट्रोड्यूस कर दी टर्म x की क्यूब, तो उसका कोएफिशिएंट कितना है, 0। जब कोई एक्सप्रेशन में वो टर्म है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट क्या माना जाएगा, 0। तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया, 0। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, सबसे पहले हाईएस्ट पावर 9x क्यूब, देन नेक्स्ट वन, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर का वेरिएबल है वो सबसे पहले, देन उसके बाद नेक्स्ट वन, देन नेक्स्ट वन एंड देन नेक्स्ट वन, ये कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन द क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। अब हमने मोनोमियल में क्या था, जिसके अंदर एक ही टर्म हो, बाइनोमियल में जिसमें 2 टर्म्स हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो। अब इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 टर्म्स है, तो ये क्या बन गया हमारे पास,
बाइनोमियल। तो ये एक्सप्रेशन बना हमारे पास बाइनोमियल। इसमें कितने टर्म्स है? 1 2 3, तो इट इज ट्राइनोमियल। इसमें कितने टर्म्स है हमारे पास? एक टर्म्स है, तो मोनोमियल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 6x स्क्वायर। इसकी डिग्री कितनी है? हमें डिग्री बतानी है ईच एंड एवरी केस में। इसकी डिग्री कितनी है? 2। इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। यहां पर डिग्री कितनी है? मैक्सिमम डिग्री है इस वेरी इसके एक्सप्रेशन में 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3। अब 0, ये कैसा पॉलिनोमियल है? जीरो पॉलिनोमियल। अभी हमने डिस्कस किया था जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड। ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है? हमेशा 1, क्योंकि इसे हम क्या लिख सकते हैं? ये किसके इक्वल है? 2 डॉट एक्स की पावर 0। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0। हमेशा कांस्टेंट की डिग्री कितनी रहेगी? 0। नाउ द नेक्स्ट वन, नाउ ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उन सब के बेसिस पर आप इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखिए और वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है? उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व करने हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। हमने पॉलिनोमियल में देखा था इसकी जो पावर होनी चाहिए, जो डिग्री होती है, जो वैल्यू ऑफ n होती है, वो मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। सो नेगेटिव इंटीजर इसमें है, x एक रियल नंबर पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव इंटीजर है। सो ये एक पॉलिनोमियल है। यस, इसमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? ये x रेज टू पावर -1। अगर हम इस x की पावर को ऊपर ले जाते हैं तो x रेज टू पावर -1 हो जाती है। तो अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बनेगा? इट इज नॉन एज द, क्या ये पॉलिनोमियल है? आप देखिए इसको, पावर नेगेटिव जा रही है, हमने क्या कहा था? पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। सो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्लियर? इन द नेक्स्ट वन, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ x की क्यूब, ये एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है। इसमें x की क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? क्या इसमें x की क्यूब का कोई कोएफिशिएंट, x की क्यूब की कोई टर्म है? नहीं है। अगर वो टर्म ही नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट क्या अज्यूम किया जाएगा? 0, क्योंकि हम इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं? x रेज टू पावर 2x रेज टू पावर 4 0 डॉट x रेज टू पावर 3 प्लस 3 डॉट x रेज टू पावर 2 प्लस 4x माइनस 5। यहां पर हमने इंट्रोड्यूस कर दी टर्म x की क्यूब, तो उसका कोएफिशिएंट कितना है? 0। जब कोई एक्सप्रेशन में वो टर्म है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट क्या माना जाएगा? 0। तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया? 0। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? सबसे पहले हाईएस्ट पावर 9x क्यूब, देन नेक्स्ट वन, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर का वेरिएबल है वो सबसे पहले, देन उसके बाद नेक्स्ट वन, देन नेक्स्ट वन एंड देन नेक्स्ट वन, ये कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन द क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। अब हमने मोनोमियल में क्या था? जिसके अंदर एक ही टर्म हो, बाइनोमियल में जिसमें 2 टर्म्स हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो। अब इसमें कितने टर्म्स है? 1 2 टर्म्स है, तो ये क्या बन गया हमारे पास? बाइनोमियल। तो ये एक्सप्रेशन बना हमारे पास बाइनोमियल। इसमें कितने टर्म्स है? 1 2 3, तो इट इज ट्राइनोमियल। इसमें कितने टर्म्स है हमारे पास? एक टर्म्स है, तो मोनोमियल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 6x स्क्वायर। इसकी डिग्री कितनी है? हमें डिग्री बतानी है ईच एंड एवरी केस में। इसकी डिग्री कितनी है? 2। इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। यहां पर डिग्री कितनी है? मैक्सिमम डिग्री है इस वेरी इसके एक्सप्रेशन में 3।
सो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3। अब 0, ये कैसा पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल। अभी हमने डिस्कस किया था जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है, हमेशा 1, क्योंकि इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल है, 2.x⁻0, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 0। हमेशा कांस्टेंट की डिग्री कितनी रहेगी 0। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इज क्लासिफाई एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक एक्सप्रेशंस। इन ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है, इनमें कौन सा क्यूबिक एक्सप्रेशन, कौन सा क्वाड्रेटिक और कौन सा लीनियर एक्सप्रेशन है। हमने बताया था लीनियर एक्सप्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होगा, ax प्लस बी, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जनरल फॉर्मेट क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और क्यूबिक में क्या आएगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब इनमें जो कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन, वो a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, क्लियर। सो a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। लुक एट दिस इज लीनियर एक्सप्रेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड दिस इज क्यूबिक एक्सप्रेशन। नाउ ये हमारा किस एक्सप्रेशन से मैच करता है, लीनियर एक्सप्रेशन से। कंडीशन क्या है, a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 इन ईच एंड एवरी केस। अगर इसमें a 0 हो जाता है तो कांस्टेंट बन जाएगा, इसमें a 0 किया तो लीनियर बन जाएगा, इसमें a 0 किया तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्लियर। सो यहां पर ये कैसा एक्सप्रेशन है, ये है लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ ये क्या एक्सप्रेशन है जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 3, मैक्सिमम पावर 3 कब होती है, क्यूबिक एक्सप्रेशन में। हमें मैक्सिमम डिग्री देखनी है और मैक्सिमम डिग्री के हिसाब से हम इस पे वैल्यू बता सकते हैं। इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2, तो ये कैसा एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्लियर। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 0, p0, p1, p2 in the given expression polynomial py is equal to this. So we have to replace y by 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुट करते हैं y is equal to 0। क्या पुट किया हमने, पुट y is equal to 0। तो p0 कितना हो गया, इट इज इक्वल टू y की जगह 0 रख दीजिए प्लस 1, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पुट y इज इक्वल टू 1, सो p1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, या 1 पुट कर दीजिए, क्लियर। अब यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस 1 बच गया। नाउ पुट y इज इक्वल टू 2, p2 पुट कीजिए, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 माइनस 2 3। सो यू कैन कैलकुलेट बाय योरसेल्फ इजीली। भाई ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। जितने आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करोगे आपको इनके बारे में और क्लियर होगा। नाउ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमने देखा था जीरोस कैसे फाइंड करते हैं हम, जीरोस के लिए इनकी वैल्यूज को हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं। सो x प्लस 3 हमने मान लिया, लेट x प्लस 3 कितना है 0। अब x प्लस 3 0 है तो x का वैल्यू कितना आया -3, सो दिस इज द 0। ये हमारा क्या बन जाएगा जीरोस। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट एक्सप्रेशन, x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो या तो ये 0 है या ये 0 है। अगर ये 0 है तो x इज इक्वल टू -1, और ये 0 है तो x इज इक्वल टू -2, लाइक दिस वन, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई -1 और x इज इक्वल टू -2, क्लियर। सो आपको फैक्टर बनाने भी आने चाहिए, तो फैक्टर इज आल्सो द इंपॉर्टेंट वन। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, यहाँ तो हमारे पास फैक्टर गिवन थे, इसमें फैक्टर नहीं है तो आपको फैक्टर बनाने होंगे। इस केस में फैक्टर क्या बनेंगे, x माइनस, अब ये फैक्टर वाली हम वीडियोस में देखेंगे कि फैक्टर कैसे बनाते हैं। हम यहाँ डायरेक्ट फैक्टर बना रहे हैं। सो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस
x minus 2 into x plus 1. So it becomes x minus 2 x minus 1. It becomes px is equal to x minus 2 and x minus 1. नाउ अगर आपको वैसे शॉर्टकट डायरेक्ट देखना हो कैसे बनाते हैं, तो इसमें जो वेरिएबल कोफिशिएंट होता है, कांस्टेंट x का जो कोफिशिएंट है वो है -3. तो -3 के हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए +2. -3 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या आ जाए +2. सो -2 और -1 इनका प्रोडक्ट कितना आया +2. इनका सम कितना आएगा -3. तो अब हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे वो बनेगा x minus 2 और x minus 1. क्लियर? सो आप कोशिश कर सकते हैं इसके लिए भी डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ. अब ये इसमें अगर हम इसे 0 पुट करते हैं तो x minus 2 इक्वल टू 0 और x minus 1 इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1. तो दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई. सो दीज आर zeros. नाउ द next topic is remainder theorem. Now what is the remainder theorem? Let px be any polynomial. When px is divided by x minus a, px कोई पॉलिनोमियल है और हम px को x minus a से डिवाइड करते हैं, then its remainder is pa. Then its remainder is pa. तो pa क्या होगा? इसका रिमाइंडर होगा. क्लियर? नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल. x minus x cube minus 2x square plus 3 is divided by x minus 1. ये हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है px और इसे हमें डिवाइड करना है x minus 1 से. तो रिमाइंडर क्या होगा? इस केस में रिमाइंडर क्या होगा? तो बिना इसको एक्चुअल डिवाइड किए हमें रिमाइंडर निकालना है. तो वी फॉलो दिस थ्योरम. सो यहां पर हमारे पास क्या है? डिवाइड किससे किया था? यहां पर x माइनस a से. वैल्यू क्या आया? रिमाइंडर क्या आया? pa. यहां हम डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से. तो रिमाइंडर क्या आएगा? इसका रिमाइंडर होगा p1. इसका रिमाइंडर क्या होगा? p1. सो यहां पर p जहां जहां x था उसकी जगह में क्या पुट करना है? 1 क्यूब माइनस 2 इंटू में 1 क्यूब 1 स्क्वायर प्लस 3. अब इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी? 1 की क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 हो गया प्लस 3 प्लस 1 4 माइनस 2 2. तो इसका रिमाइंडर बचेगा 2. क्लियर? सो दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम. जहां पर हमें रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम डायरेक्ट इनका रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज द फैक्टर थ्योरम. नाउ व्हाट इज द फैक्टर थ्योरम? हम कह सकते हैं इफ x minus a is the factor of px. मान लिया x माइनस a px का कोई फैक्टर है. अगर ये इसका फैक्टर है देन इसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0. हम किसी भी नंबर से किसी दूसरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आता है? हमेशा लास्ट में 0. 0 आने का मतलब है कि वो पूरा उसको डिवाइड करता है. तो x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px, देन रिमाइंडर
शुड बी 0 और रिमाइंडर क्या होता है पी ए, रिमाइंडर हमारे पास क्या होता है हमेशा पी ए, तो पी ए शुड बी इक्वल टू 0, हमारे पास पी ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। क्लियर। सो और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं अगर रिमाइंडर 0 है पी ए इज इक्वल टू 0 है देन x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स कोई एक्सप्रेशन है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। अब ये कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन का जो फैक्टर है वो x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं, हमें चेक करना है। लेट पी एक्स हैज ए फैक्टर ऑफ x माइनस 1, फैक्टर एज x माइनस 1। तो इसके दो फैक्टर हो सकते हैं पावर 2 है, तो इनमें से एक फैक्टर हमारे पास क्या है x माइनस 1, इसे चेक करना है। लेट अज्यूम करते हैं। सो इसके अंदर हमने क्या लिया x माइनस 1 को हम क्या पुट करते हैं 0 के बराबर। लेट x माइनस 1 क्या है 0, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब x इज इक्वल टू 1 पे अगर ये वैल्यू देता है 0 तो ये इसका फैक्टर है। अगर x p1 की वैल्यू हमारी 0 आ जाती है तो ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेट अस चेक। सो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 5, सो इट इज इक्वल टू 3 प्लस 2 माइनस 5 इक्वल टू 0। सो p1 इज द फैक्टर ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। हम इसके बेस के क्वेश्चंस फर्दर डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।